हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर में जो हम कॉलिनिज्म्स, कास्ट एंड रिजर्वेशन के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि संप्रदाय, जाति और जो हमारा आरक्षण दिया गया है उसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एनआईओएस को हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। सभी बच्चों के लिए जो ये चैप्टर है वो कई मानने में इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी चीज़ों के विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए, एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आई हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डूइंग हियर a colonialism, caste and reservation. There is a colonialism also done and caste also done, but reservation. What is the reservation here? The reservation here is the policy, the most important. There is the first point here arrive, or it is rational. The rational here are keeping in mind the backward condition of the backward classes. The constitutional marker also made a special provision for the fulfillment of the backward classes. The special provisions are in their form of protective discrimination. The policy of reservations is on the instance of the protective discrimination. Before we discuss the policy of reservation and its constitutional provisions, let us brief look at the constitutional provision relating to the backward classes. The Article 38 and 46 is the chapter or directive principle, their most important chapter, also doing there the enjoining upon to the state duty to the strive for the welfare for the people in a general and backward classes in a particular. Article 38 state 1, the state shall be tried to the promote to the welfare of people by scoring and the promoting to the effective as it is a social order which is the justice. The social, economics and political shall form all the institutions of the national life. A second here, the state shall be a particular strive to be minimized to the inequalities in incomes and the behavior of the eliminate the inequality in status, facility and opportunity not only amongst the individually but also amongst the group of people deciding and different area of engage in different is a vacation. The article is a 46 stipulate if there is a state shall be promoted with the special care the educational and the economical interest of the weaker section of the people, and it is a particle of the scheduled caste and tribes as a shall protect them from injustice and all form of explanations. The policy of reservation is based on the principle of protective discrimination, and protective discrimination is a favor of the backward. The classes has a felt necessity by the constitution marker because of the realization that is equality of opportunity, along with not of his living to the backward class at the par with the rest of the society. Equality of opportunity in the absence of the equality of condition would be result in is a deepening of inequality instead of promoting equality. One must be noted here that is a provision of the protective discrimination is not on expression but is integrated to be right to be equality. The second point is the most important, reservation for the SC and ST quota. The Constitution recognizes 3 categories of people as a backward class. In this section, we will deal with the provision of related to be SC, ST.
The Constitution provides for the three types of reservation for the SC caste and SC tribes. There is the most important here is the scheduled caste and scheduled tribes. There are our first reservation job is the government service and the public sector. The reservation in their education institution and the reservation with the legislative representation. Under Article 16A and 324 and the 333, the 50% and 7% of jobs are reserved at all levels in the public service for the SC and the ST, respectively. This is a reservation, however, most as the for it is may be consistent with the maintenance of efficiency of administration. Article 35. There is a provision for the Article 16. The Article 15.4 is a deal with the reservation of the seat in the educational institution, and Article 15.4 state or nothing in Article 15 or Clause 2 or Article 29 shall be prevent the state for making any special provision for the advancement of any social and educationally backward class of citizen of or their scheduled caste and scheduled tribes. Accordingly, there is a union and state government and have reserved to 20% of the seat in all the educational institution and maintaining by the public money. Moreover, qualification for the admissions has also been relaxed for the SC and ST quota, so that they can be get assist to educational opportunities. Article 330 and 332 is to provide for the reservation of seat in the Lok Sabha and state legislative assemblies. 78 seats for the SC and 38 seats for the ST are reserved for in the Lok Sabha and the state legislative assembly. 540 and 282 seats are reserved for the SC and ST respectively. Moreover, seats are also reserved in the Panchayati Raj institution. The next point here arrives the reservation for the OBC. There is reservation for the OBC here. As we have already noted that a task was specified to identify other backward classes, means OBCS, was left to the union and state government. In many states where the backward class is a movement was strong, such as Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Bihar, to the name the few, the state governments have reserved a job at all levels in the public service and the seat of educational institute. There is the most important provision for the some state. The union government, however, took a very long time in the deciding to the provide reservation to the OBCS in the central service. The union government had earlier as a 1953 appointed a Kellekar's commission under Article 340. The commission has submitted its report in 1956, but its recommendations were not implemented by the union government. The second commission under Article 340 was appointed by Janata Party government in 1978. The commission known as the Mandal Commission has submitted a report 1982, and it is identified as a 3,943 caste as a OBC and recommended of 27 reservation in the government and semi-government job and admission to the educational institutes. On 30 August 1990, the Union government headed by the B.P. Singh issued on the officially is a memorandum sending reservation to the OBC on the line recommended by the Mandal Commission. Some threat after is a spirit to the protect where to stay. And there is a writ or petition where the Phil Supreme Court and many High Court is questioned this measure. The Supreme Court is examined the issue of the November 1992 the permitted by the union government to reserve 27 of the job for the OBC subject to be is the exclusions of the creamy layers. Among to the OBC, the Ramanand Prasad community was set up to the union government to identify there is a creamy layer, and once it had done its job, the government executive the order to the 30th August 1990 in the September 1993. Thus we can see that took nearby the 40 years for the union government to provide the benefit of reservation to the OBCS, and it also took as much time to accept caste as a valid basis for the identification of the socially and educationally backward classes.
The next topic is here most important, the importance of women as a reservation. There is the most important here. The women constitute nearby the half of the entire Indian population, but a condition of women in their Indian miserable due to literacy, poverty, and backward social value. Keeping a view to prevalent of circumstance is reservation for the women but started in the incompetent. There is the woman from the dusk garage to the household aid. A debate to there has been to the going on the ensure women reservation is at every level of representative system of India, democracy and even in their state administrative service. Under the Panchayati Raj system, women as a seat has been reserved at both the Panchayati level and the block of district level. Some political parties are also debating the issue of giving at the least 30% of ticket to the women candidate for a contesting election for the state legislative assembly and also for the parliamentary election, but a woman as the reservation bill is still pending in the parliament. हमारा जो अगला टॉपिक आया है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर है आरक्षण नीतियाँ। देखिए आरक्षण नीतियाँ क्या है, इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आता है मूल आधार। देखिए आरक्षण की नीति का मूल आधार क्या हो सकता है। कहते हैं पिछड़े वर्गों के पिछड़े वर्ग को देखते हुए संविधान में अनेक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इसमें जो है SC ST कोटा के लिए और OBC के लिए जो आरक्षण प्रदान किया गया है, इवन की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण दिया गया है। विशेष प्रावधान संरचनात्मक भेदभाव के रूप में है। आरक्षण की नीति एक जो है संरचनात्मक विभेदीकरण है। आरक्षण नीति एक एवं इसके जो है सर्वैधानिक आरक्षणात्मक प्रावधान जानने से पहले आइए पिछड़े जातियों के लिए सर्वैधानिक प्रावधानों को जानें। कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अध्ययन के अंतर्गत धारा 38 और 46 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जन साधारण के सामान्य और पिछड़ी जातियों के विशेष कल्याण पर ध्यान दे। धारा 38 के अनुसार कहते राज्य चाहिए कि वह जनता की भलाई एवं कल्याण के लिए उसके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर को जो है राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए सदैव प्रयास करे। ये प्रत्येक जो है राजनीतिक नेताओं का ये प्रयास होना चाहिए। राज्य विशेष रूप से आर्थिक स्तर की असमानता को कम करने का प्रयास करे और साथ ही जो है आर्थिक असमानता को जो है दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए जो है कम किया जा सके। यानी जो भी लोग जो है ऐसे प्रावधानों से गुजरते हैं जिनकी स्थिति समाज में बुरा हो जाता है उनके लिए प्रावधान करे। धारा 46 के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह गरीब तबके के लिए लोगों को जो है शैक्षिक आर्थिक स्तर पर जागरूकता लाकर उनका जो है संवर्धन करेगा। राज्य विशेषता अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के जो है शोषण से मुक्त करके नैतिकता आरक्षण प्रदान करेगा। आरक्षण की नीति का मुख्य आधार संरचनात्मक पूर्तिकरण से है। यह पूर्तिकरण पिछड़ी जातियों के पक्ष में है क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा था कि बिना उनके ऊपर उठाए समानता मूलक समाज का निर्णय नहीं किया जा सकता। समानता में संवर्धन के बजाय समानता के अवसर उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि संरचनात्मक पूर्तिकरण के प्रावधानों के अपवाद नहीं है, लेकिन समानता के अधिकार में जो है अनुसूचित जरूरी है। उसके पश्चात अगला पॉइंट यही दर्शाता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। देखिए ये कई मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है कि संविधान के जो है पिछड़ी जातियों की 3 तरह से पहचाना की गई है। इस अनुभाग में हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधानों की चर्चा करेंगे। कहते संविधान के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में 3 तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। पहला सुनिश्चित यही किया गया है कि सार्वजनिक एवं सरकारी सेवाओं में नौकरियों के लिए आरक्षण दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण इनको प्रदान किया गया है और विधायक प्रतिनिधित्व में आरक्षण भी धारा जो है 16 जो 20 और चौथा बात यही बताती है कि 333 के अनुसार जो है 15% और 7.5% नौकरियों में आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की गई है। धारा 35 में यह व्यवस्था है कि प्रशासनिक स्तर पर भी यह आरक्षण अनुसूचित जाति का ही होगा। धारा 15 और 4 आर्टिकल की बात करें हम तो जो है शिक्षित संस्थाओं को सीटों का जो है प्रबंधन किया गया है। इस आधार के अनुसार राज्य के धारा 15 या धारा 29 के जो है उपबद्ध में किसी तरह का संशोधन करके सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षिक रूप से जो है पिछड़े या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ
जो है अधिक करने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि संघ या राज्य सरकार ने पहले से ही उन शैक्षिक संस्थाएं जो जनता के धन से संचालित होते हैं वहाँ 25% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए उनकी योग्यताओं में भी जो है शिथिलता रखी गई है। उनसे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। धारा 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की भी आरक्षण की गई है। लोकसभा में कुल जो है 78 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए तथा 38 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। राज्य की विधानसभा सीटों में जो है कुल 540 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 282 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए भी इस प्रकार की सीटें जो है आरक्षण करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अन्य पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि अन्य पिछड़े जातियों की पहचान करने और सुनिश्चित करने का काम केंद्र एवं राज्य सरकार को छोड़ दिया गया है। ऐसे कई राज्य में जहां पिछड़े वर्गों का आंदोलन मजबूत था, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार इत्यादि में राज्य सरकार ने लोक सेवाओं के सभी स्तरों पर नौकरियों को तथा जो है शिक्षित संस्थाओं में सीटों को आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है, जो कि कहते हैं कई हद तक न्याय उचित भी है, क्योंकि इनको जो है पहले के समय में जो है इतना उनको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर नहीं किया जाता था। लेकिन अगर बात करें हम केंद्र सरकार की केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने में, तो अब इससे अधिक लंबा समय लिया गया, यानी काफ़ी समय जो है केंद्र सरकार की सेवाओं में जो है इनको प्रावधान दिया गया। केंद्र सरकार ने 1953 में अनुसूचित 340 के अंतर्गत केलरकर आयोग नियुक्ति किया गया था और आयोग ने जो है 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश को लागू नहीं किया। दूसरी आयोग जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है 1978 में जो है नियुक्त किया गया था। इस आयोग के मंडल आयोग कहा गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट जो है 1982 में सरकार को सौंप दी गई और इसमें 3943 जनजातियों के पिछड़ी जातियों के रूप में पहचान की गई तथा सिफारिश की गई कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में तथा शिक्षण संस्थाओं में इन जातियों के लिए जो है 27% आरक्षण प्रदान किया जाए, जो कि बहुत बड़ी आरक्षण की जो है यहाँ पर बात करने का प्रावधान किया गया। 13 अगस्त 1990 में जो है बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक कार्यवाही ज्ञापन जारी कर अन्य पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया। इसके तुरंत बाद बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन भी हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल भी की गई तथा सर्वोच्च न्यायालय में नई कार्रवाई का प्रश्न भी उठाया गया। इन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर जो है नवंबर 1992 में सुनवाई की तथा केंद्र सरकार को इस शर्त पर अन्य पिछड़े जातियों को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी कि अन्य पिछड़े जातियों की जो है क्रीमी लेयर को इस आरक्षण से बाहर रखा जाए, यानी क्रीमी लेयर को जो है इससे बाहर रखने का प्रावधान से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामानंद प्रसाद आयोग का गठन किया गया। इसका काम पूरा होने के बाद सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेशों को सितंबर 1993 से लागू किया, यानी 1993 में जो है 1993 में इसको लागू किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात इसमें थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की आरक्षण का जो है लाभ देने के लिए 40 वर्ष का समय लिया। इतना ही समय जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जाति को एक सही आधार स्वीकार करने में लिया गया। हमें यह ध्यान भी रखना होगा कि अन्य पिछड़े जातियों के आरक्षण का लाभ केवल सरकारी नौकरी में ही दिया गया है और उसके लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया है, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महिलाओं के लिए आरक्षण का महत्व। देखिए, भारत सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो है समाज में सही स्थिति देने के लिए जो है कई जगहों पर जो है उनके लिए आरक्षण का जो है प्रावधान किया है। आज जो महिला है बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर रही है और हर क्षेत्र में जो है इनका विशेष स्थान भी रहा है। तो महिलाओं के लिए भी भारत सरकार ने बहुत तरह के प्रयत्न किए हैं। महिलाएँ जो है भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है और इनका जो है प्रतिशत सामान्य ही माना गया है, जितने पुरुष है उतने ही महिलाएँ हैं। लेकिन भारत में अशिक्षित, गरीबी और पिछड़े सामाजिक मूल्य के कारण महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। कहते हैं प्रचलित परिस्थितियों के दृष्टिगत महिलाओं के घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया है और ये प्रावधान उनकी भलाई के लिए अत्यंत जरूरी भी थी। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक प्रतिनिधित्व संस्था राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए बहस जारी है।
पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जो है सीटों को आरक्षण कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल राज्य विधानसभाओं तथा संसदीय चुनाव में 30% जो है टिकटों पर महिला प्रत्याशी को चुनाव लड़वाने की बहस चल रहे हैं, परंतु महिला आरक्षण विधेयक अभी तक संसद में लटका पड़ा है। कहते हैं बहुत बड़ी विडंबना है, कुछ अच्छी बातें जो होती है वो सदैव लटकी ही रहती है और जो गलत बातें होती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें जो है महिलाओं के आरक्षण में संसद में लटकाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं को जो है समाज में पुरुषों के समान देना अधिकार बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है स्त्रियों की सम्मान में जो है और भी वृद्धि हो सके। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसमें हम सांप्रदायिकता के विषय में, ठीक है, आरक्षण के विषय में और कहते हैं जाति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जो कि बहुत ज़रूरी था आपके समझ के लिए और आपके लिए भी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि पहला ये कि त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही एम है कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे, और इसमें जो है आप हेल्प कर सकते हो अपने जो है व्हाट्सअप स्टेटस पर इसका लिंक को कॉपी करके। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तभी आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कोई आपको अच्छा लगता है टॉपिक, अगर आप देखना चाहते हो तो दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो पहले वो वीडियो आएंगे जो पहले यूट्यूब पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर भी लिखते हो यूट्यूब पे तो वो तिरपस कर देगा।